Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 25 सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is major policies and programs on socio-economic development. We have so far tried to understand various issues related to socio-economic development and empowerment of disadvantaged groups. Now you may also like to know about the major policies and programs focused on socio-economic development. If we discuss all of them, it will be too exhaustive. We shall therefore discuss below some of the important policies and programs related only to education and health. You may study the rest in your senior classes. तो हम लोगों ने बहुत पहले से ये कोशिश कर रखा है कि हम लोग जो भी इश्यूज है रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स का है तो उसको हम लोग ने समझने की बहुत पहले से ही कोशिश कर रखी है। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि कौन से ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फोकस किया गया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अगर हम इन सभी को डिस्कस करेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा बोर फील करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो कि सिर्फ रिलेटेड है एजुकेशन और हेल्थ से हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले, और जो बाकी रह गया उसको हम लोग सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Education for all. You can very well appreciate that not only India but also the entire international community realizes the need for providing education to all. Under the leadership of UNESCO, a large number of countries met at Jomtien, Thailand in 1990 and decided to provide education for all by 2000. In 1992, 9 highly populous countries, namely China, India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Mexico, Bangladesh, Brazil, and Egypt, congregated at Delhi to reinforce their commitment towards education for all (EFA). For the last 2 decades, India, with the help of international agencies, has adopted various measures towards achieving the goal of education for all. The following are the most significant. तो आप लोग बहुत अच्छे से अप्रिसिएट करोगे कि सिर्फ इंडिया बल्कि जितना भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने रियलाइज किया कि एजुकेशन है वो सबके लिए जरूरी है कि एजुकेशन का प्रोवाइडेंस। तो लीडरशिप जो यूनेस्को के लीडरशिप के अंदर जितने भी कंट्री थे वो जॉम्टियन थाईलैंड में 1990 में मिलते हैं एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन फॉर ऑल 2000 तक। 1992 में जो 9 ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मेक्सिको, बांग्लादेश, ब्राजील और इजिप्ट, ये दिल्ली में मिलते हैं और इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि एजुकेशन फॉर ऑल एफा कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट 2 डिकेड से जो इंडिया है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के हेल्प से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स को उठाया है जिससे वो अपने एजुकेशन फॉर ऑल गोल को अचीव कर सके। एंड यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट गोल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। Universalization of elementary education. The National Policy on Education 1986 envisages that free and compulsory education should be provided to all children up to the age of 14. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 made free and compulsory education a fundamental right for all children in the age group of 6 to 14 years. Recently, Indian Parliament has enacted the Free and Compulsory Education Act 2009 as a result of the efforts made by central and state governments. Almost 95% of the country's rural population now has primary schools within 1 kilometer and about 85% have upper primary schools within 3 kilometers. This has resulted in steady growth of enrollment of children of 6 to 14 years of age in primary and upper primary schools has gone up steadily. Significant improvements have taken place in enrollment of girls and scheduled castes and scheduled tribes. There has been significant increase in the number of primary and upper primary schools.
तो एक नेशनल पॉलिसी बनाया गया था एजुकेशन पे 1986 में। इसमें क्या किया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लागू किया गया था जितने भी चिल्ड्रन आते हैं एज 14 तक में उनके लिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2002 में, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बनाया गया था एक फंडामेंटल राइट, जो भी बच्चे एज ग्रुप जिनका हो 6 to 14 ईयर्स में। रिसेंटली जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने क्या इनैक्ट किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने। ऑलमोस्ट 95% जो कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन है वहां पे प्राइमरी स्कूल है 1 किलोमीटर के अंदर, और जो 85% है उसमें अपर प्राइमरी स्कूल है 3 किलोमीटर के अंदर। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें जो भी बच्चों का जो 6 से 14 साल तक के बच्चे का जो एज ग्रुप है उनके बच्चे जो है इस एज ग्रुप से उनका एडमिशन किया गया। अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी इनके ग्रोथ हुए। इनका एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया कि गर्ल्स का भी इनरोलमेंट किया जा रहा है स्कूल में, शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के भी जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है इसके इंक्रीज की वजह से बच्चों का एडमिशन होने लगा। The central and state governments over a period of time evolved strategies to reduce dropout rates and improve levels of achievements in schools. The steps taken in this direction are as follows: creating parental awareness and community mobilization, involvement of community and panchayati raj institutions, economic incentives such as free education, free books and free uniforms, improvement in the content and process of schooling, and national program of nutritional support to primary education mid-day meal scheme. The following programs are specifically aimed at universalization of elementary education. जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो समय के अनुसार बहुत सारे स्ट्रेटजीज को अपनाए जिससे जो भी ड्रॉप आउट रेट्स है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो अचीवमेंट्स लेवल है स्कूल का उसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पेरेंटल अवेयरनेस को क्रिएट किया गया है, कम्युनिटी मोबिलाइज किए गए हैं, कम्युनिटी और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक इंसेंटिव जैसे कि बताया जा रहा है कि एजुकेशन फ्री मिलेगा, बुक्स फ्री मिलेंगे, फ्री यूनिफॉर्म्स मिलेंगे, जो भी कंटेंट है स्कूलिंग के प्रोसेस में उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। और नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो भी प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं उनको नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा मिड डे मील स्कीम। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को अपनाया गया है जिससे एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान, an ambitious program for achieving the goal of universalization of elementary education known as Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) was launched in 2001. The goals of SSA are as follows: enrollment of all 6 to 14 age group children in school education guarantee schemes EGS Center Bridge course by 2005, bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary education level by 2010, universal retention by 2010. Focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life. तो यहाँ पे एक एम्बिशियस प्रोग्राम बनाया गया है जिससे जो बच्चे हैं उनका जो यूनिवर्सलाइजेशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन का। और इसके हम लोग इस प्रोग्राम को एक नाम दिया है सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था। इस गोल के कुछ यहाँ पे उद्देश्य है। यहाँ पे जो भी बच्चे 6 से 14 साल के एज ग्रुप के हैं उनका स्कूल में एडमिशन हो सके एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत EGS या फिर सेंटर ब्रिज कोर्स के तहत 2005 में। जितने भी जेंडर या फिर सोशल कैटेगरी गैप से प्राइमरी स्टेज पे 2007 में और एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे 2010 में इनको सबको ब्रिज अप किया गया है। यूनिवर्सल रिटेंशन 2010 में किया गया है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया गया है जिससे जो भी क्वालिटी है उस पर अच्छा फोकस हो सके, सेटिस्फैक्टरी फोकस हो सके जो भी बच्चों के लाइफ है उनसे रिलेटेड। National Program of Nutrition Support to Primary Education or Midday Meal Scheme. This program was started and is still continuing to attain the goal of universalization of elementary education. The objectives of Midday Meal Scheme are improving the nutrition status of
children in class 1 to 5th in government, local body and government aided schools and EGS and A centers, encouraging poor children by helping disadvantaged sections to attend schools more regularly and help them concentrate on classroom activities, providing nutritional support to children of primary stage in drought affected areas during summer vacation. तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया है, अभी भी कंटिन्यू है, जिससे इनका जो यूनिवर्सलाइजेशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके गोल को ये अचीव कर सके। एंड जो मेन उद्देश्य है मिड डे मील स्कीम का वो क्या है, इसमें जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो बच्चे क्लास 1 से 5 तक है गवर्नमेंट में और लोकल बॉडी या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, एजीएस में या ए सेंटर्स में, उनको न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हो सके। जो भी गरीब बच्चे हैं या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो स्कूल जा सके रेगुलरली और उनको क्लासरूम एक्टिविटीज में वो कंसंट्रेट कर सके, इसलिए उनको इंकरेज किया जाता है। इन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को जो प्राइमरी स्टेज पे होते हैं, जहाँ पे ड्राउट अफेक्टेड एरियाज है समर वेकेशन के टाइम में। नेशनल लिटरेसी मिशन, the National Literacy Mission (NLM) was launched in 1988. It aims at imparting functional literacy to adult non-literates in the age group 15 to 35 in the country. The main programs of the NLM were the Total Literacy Campaign to impart basic literacy to the adult non-literates. It was followed by the Post-Literacy Program to reinforce the literacy skills of the neo-literates, and then the Continuing Education Program was aimed at providing facilities like rural library and reading room for the neo-literates and other sections of the community. In addition, vocational training was also provided to the neo-literates and other disadvantaged sections of the society through the जन शिक्षण संस्थान। तो एक नेशनल लिटरेसी मिशन एनएलएम को लॉन्च किया गया था 1988 में। इसका लक्ष्य क्या था कि ये लिटरेसी जितने भी एडल्ट नॉन लिटरेट्स उनको लिटरेसी मिल सके जिनका एज ग्रुप 15 से 35 तक है हमारे कंट्री में। ये जो मेन प्रोग्राम है एनएलएम वो टोटल लिटरेसी कैंपेन है और इसका जो बेसिक लिटरेसी है वो नॉन एडल्ट लिटरेट एडल्ट को मिल सके। और इसको फॉलो कौन करता, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि रेनफोर्स किया गया था लिटरेसी स्किल्स के तहत न्यू लिटरेट्स के लिए। उसके बाद हम लोग का जो एजुकेशन प्रोग्राम है इसका लक्ष्य है कि ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके रूरल लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में, जो भी न्यू लिटरेट्स है उनके लिए और जो अदर सेक्शंस से बिलोंग करते हैं कम्युनिटी से। इन सब के अलावा इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो न्यू लिटरेट्स है और जो भी अदर डिसएडवांटेज सेक्शंस है सोसाइटी के जन शिक्षण संस्थान के द्वारा। The NMM resulted in the following major outcomes. It has been able to cover 597 districts in the country under various literacy programs, and nearly 124 million people are reported to have been made literate. The literacy rate of the country has also increased from 52.21% in 1991 to 65.37% in 2001, registering one of the highest decadal growth in literacy so far. However, despite these gains, nearly 34% of the non-literates in the 15 plus age group in the world are in India. The gender, regional and social disparities are still continuing. वो जो NLM के रिजल्ट में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम भी है। तो जो 597 डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री में वो अलग अलग लिटरेसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पे 124 मिलियन पीपल को लिटरेट बनाया गया। जो लिटरेसी रेट है कंट्री का वो इंक्रीज हुआ 52.21% 1991 में था एंड 65.37% 2001 में था और ये एक हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है लिटरेसी में। इन सब के अलावा कुछ इन सब जो गेन्स है उन सब के अलावा करीब जो 34% जो नॉन लिटरेट्स है जिनका एज ग्रुप 15 प्लस आता है वो पूरे वर्ल्ड में वो अभी भी नॉन लिटरेट्स हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और जो जेंडर, रीजनल या फिर सोशल डिस्पैरिटीज है वो अभी भी कंटिन्यू है। In view of the above, the government of India has decided that an integrated approach to literacy would be followed now. This means the total literacy campaigns and the post-literacy program will now operate under one literacy project. This approach would enable the enormous illiteracy problem to be tackled in a holistic manner by treating the imparting of functional literacy as a continuum rather than as a one-off benefit for the illiterate person. The inputs would be made goal-directed. Literacy campaigns would continue to run in those areas where there are large pools of residual illiteracy. At the same time, for those who have crossed the basic learning phase, programs of consolidation, vocational skills, integration with life skills, and such other aspects would be given priority.
तो जो भी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो हमारे जो भारत की गवर्नमेंट है उसने क्या निश्चय किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो भी लिटरेसी है उसको फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब कि टोटल लिटरेसी कैंपस चलाया जाएगा और पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाएगा वन लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत। ये जो अप्रोच है ये इनेबल करेगा इनरमस इलिटरेसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक अच्छे तरीके से। और जो भी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फंक्शनल लिटरेसी है वो कंटिन्यू रहेगा, और इसका हम लोग को फायदा भी मिलेगा कि जो इलिटरेट पर्सन है और जो इनपुट्स है उनका जो भी गोल डायरेक्टेड हम लोग गोल को अचीव कर सके। लिटरेसी कैंपेन्स को कंटिन्यू किया जा रहा है उस एरियाज में जहाँ पे लार्ज पूल्स और रेसिडुअल इलिटरेसी में, जहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो इलिटरेट अभी भी है, वहाँ पे लिटरेसी कैंपेन्स चलाया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। वहीं सेम टाइम पर हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक लर्निंग फेज है प्रोग्राम से कंसोलिडेशन के लिए वोकेशनल स्किल से इंटीग्रेशन विद लाइफ स्किल्स है, ये जितने भी एस्पेक्ट्स है वो उन सबको भी प्रायोरिटी अब दी जा रही है। Health for All. India was the first country in the world to launch a comprehensive family planning program in 1951. This was aimed at enhancing individual health and welfare in the country, but there were very few health facilities for serving the poor people living in remote rural areas. The past 5 decades have witnessed significant investments in developing a network of health centers all over India. However, though we have not achieved the expected infrastructure of sub-centers, primary health centers and community health centers, the government has been trying to provide health facilities to all the citizens of India. तो भारत सबसे पहले एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लॉन्च किया। इसका लक्ष्य क्या था कि ये इनहेंस करेगा इंडिविजुअल हेल्थ को, वेलफेयर को हमारे कंट्री में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्यू हेल्थ फैसिलिटीज है वो पुअर पीपल लिविंग जो कंडीशन रिमोट और रूरल एरियाज में उनको ये फैसिलिटीज सर्व नहीं किया जा पा रहा है। जो पास्ट 5 डिकेड्स है वो विटनेस है कि इसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं डेवलपिंग नेटवर्क में, जो भी हेल्थ सेंटर्स है पूरे इंडिया में। हाउएवर हम लोग ने अभी तक एक्सपेक्टेड वे में जो एक्सपेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है गवर्नमेंट के, वो हम लोग ने उस चीज को अचीव नहीं किया। एंड हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज जितने भी उन सबको प्रोवाइड करवाने के, जितने भी सिटीजन है हमारे इंडिया के। Though India has been making a steady progress in the development in different aspects of health, a lot of progress has to be made to achieve health for all goals. Health for all by the year 2000 was first enunciated at the WHO or UNICEF meeting at Alma-Ata in 1978. As a signatory to this, the Government of India reoriented priorities to emphasize primary health care, immunization, family planning, and nutritional support programs. World leaders, including India, committed themselves to achieve this ambitious goal by 2000. जो इंडिया है उसने एक स्टेडी प्रोग्रेस बनाया डेवलपमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ से, या फिर बहुत सारे प्रोग्रेस किए हैं हेल्थ जो भी गोल हेल्थ के गोल्स को अचीव करने में। हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 में इसको पहली बार इनिशिएट किया गया था WHO या फिर यूनिसेफ के द्वारा अल्मा-अता 1978 के मीटिंग में। और ये एक सिग्नेटरी है हमारे गवर्नमेंट इंडिया के लिए, गवर्नमेंटल इंडिया के लिए, जिसने रीओरिएंट किया अपने प्रायोरिटीज को एंड एम्फेसाइज इन्होंने किया प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स पे। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं भारत को इंक्लूड करके उन्होंने क्या कमिट किया है कि एक अच्छा सा गोल अचीव करेंगे 2000 तक, इनका एक एम्बिशियस गोल होगा। During 1951-2001, the population in India has increased almost 3 times from 36.10 crores in 1951 to 102.70 crores in 2001. Therefore, the health system is at crossroads with a wide gap between demand and supply. Looking at the distribution of medical facilities, we find there is a highly unequal distribution and most of the facilities are concentrated around major cities and towns. To reduce this inequality in distribution, Government of India started an ambitious program known as National Rural Health Mission (NRHM). Apart from NRHM, Government of India has also launched many programs related to health of women and children like जनानी सुरक्षा योजना JSY, बालिका समृद्धि योजना BSY and किशोरी शक्ति योजना KSY. With the success of NRHM, Government of India is planning to launch a similar program for urban area called National Urban Health Mission NUHM. You may see in the box the names of some major national health programs that are being implemented.
तो 1951 से 2001 तक जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो इंक्रीज हो चुका था तिगुना 36 दशमलव जो 10 जो हमारा इतना करोड़ पॉपुलेशन था 1951 में, वहीं ये 102.70 करोड़ 2001 में हो जाता है। इसलिए जो हेल्थ सिस्टम है वो एक क्रॉस रोड पे आ गया था। मीन्स जो उसका डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में बहुत बड़ी खाई खड़ी हो चुकी थी। हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज का, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो ये हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो फैसिलिटीज कंसंट्रेटेड है वो सिर्फ सिटीज और टाउन्स तक सीमित है। तो ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो गवर्नमेंट इंडिया के, उन्होंने एक एम्बिशियस प्रोग्राम बनाया जिसको हम लोग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के नाम से जानते हैं। NRHM के अलावा जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स को हेल्थ से रिलेटेड, विमेन की हेल्थ से और चिल्ड्रन के हेल्थ से रिलेटेड लॉन्च किया, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना GSY, बालिका समृद्धि योजना BSY और किशोरी शक्ति योजना KSY। NRHM की सफलता के बाद जो हमारी भारतीय सरकार है उसने एक प्लान किया है सिमिलर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए अर्बन एरिया में, जैसे हम लोग नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM के नाम से जानते हैं। आप बॉक्स में देख सकते हो कुछ मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है जिसको अभी तक इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 25.4. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल एक्सरसाइज भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। यहाँ से आंसर दिया गया है इंटेक्स क्वेश्चन का। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.